Hello everyone, welcome back to English with Pranav. Dear students, if you are new to this channel, please subscribe English with Pranav and also press the bell icon for more updates. And today I am going to start a very important topic, that is a tiger in the zoo. Actually, this is a poem of class 10th which is very much important for exam point of view. Dear students, the summary is all about a tiger who was locked in a cage and his whole power was seized. Now try to understand the summary. This poem is showing the pitiful condition of the tiger in the zoo. Actually, this poem tells us about the pitiful condition of a tiger. Any problem, dear students? No. It shows the poor condition of the tiger in a cage. Actually, this poem shows the poor condition of the tiger in a cage. दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या होता है कि a tiger is basically meant for going outside. Yes or no? A tiger is basically meant for wandering in the forest, but actually that tiger was locked in a cage. So, will he show his power? No, not at all. Now it is saying what, dear students, listen. In a zoo, the tiger walks in the limited space provided to in the little cage. Actually, there was a zoo, and in that zoo, a tiger was locked down. You can also say in the limited space provided it in the cage. That cage was so small. जिस पिंजड़े में रखा गया था, जिस केज में रखा गया था वो लॉयन को, that cage was very small and he could do nothing. Who could do nothing? That tiger could do nothing. Okay, now understand, dear students. He can take a few steps. Only he could take few steps. There are stripes on his body which are easily noticeable. A stripe on the body, did you understand, dear students? कि उसके शरीर पर पट्टे की वो मतलब आप समझ सकते हो स्ट्राइप होता है उसके बॉडी पर. ओके, एंड नाउ व्हाट आई मीन that he are easily noticeable. His paws are soft like velvet. Paws, everyone knows. Paws, वो पंजा. Okay, that was very soft like velvet. He does not make any noise while walking on his pads of velvet. Using the tiger, usually the tiger is silent but in anger. My dear students, the tiger was silent. Silent, why was he silent? Because he could not do anything, na? He was locked in a cage, yes or no? And he was in anger. My question to you guys, why was the tiger in anger? Can anyone tell me? The tiger was in anger. Tiger गुस्से में क्यों था? The tiger was in anger because he thought that I can do nothing but I am being locked in a cage. आगे क्या होता है सुनना. Poets suggest that the cage is not the proper place for the tiger as it is not its natural habitat. यहाँ पोइट बताते हैं कि द केज वॉज नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर. वो टाइगर के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं था एंड इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट. एक्चुअली कैन यू टेल मी गाइज दैट अ टाइगर बी लॉक्ड इन अ केज ऑल द टाइम? उसको क्या रखेंगे तो कभी खुश रह सकता है वो? He can never be happy. That's why he was angry. Thus, the tiger in the cage is a victim of human cruelty. यही कारण है कि जो टाइगर था उस केज में वो ह्यूमन क्रुएलिटी का विक्टिम था. विक्टिम का मतलब एक शिकार था. आज देखो चाइना से ये कोरोना वायरस आया तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके ह्यूमन क्रुएलिटी के कारण हम लोग विक्टिम हो रहे हैं. यस और नो? तो आज ये ह्यूमन क्रुएलिटी ये भी है कि हम ह्यूमन अपने सेल्फिशनेस के लिए टाइगर को भी केज में बंद करके रख रहे हैं. जनरली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम bushes or long grass near some water bodies. According to the poet, what does he say? He says that कि टाइगर्स जो होता है आमतौर पर झाड़ियों में होता है, ग्रास के पास होता है, वाटर बॉडीज के पास होता है, बट सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे लाइक देयर कमिंग देयर
to drink water and consequently can slide silently through the grass and kill them. एक्चुअली यहाँ पर पोइट बताते हैं कि आमतौर पर टाइगर का क्या ड्यूटी होता है, यही कि वो साइलेंटली वो आए, ग्रास के पास आए, वाटर ड्रिंक करे, डियर को देखे, कोई हिरन को देखो तो उसको शिकार बना के उसको किल करे. Okay, the poet wants to convey all humankind that the tiger should be there in the forest, not in the cage. तो यहाँ पर पोइट बताते हैं कि हम ह्यूमन काइंड को ये समझना चाहिए कि हम टाइगर्स को केज में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें फॉरेस्ट में ही रखना चाहिए, वही उनका रियल हैबिटेट है. बट दिस ऑल्सो शोज द क्रूएल ह्यूमन पावर विच इज जस्ट shown in this very poem. And now dear students, understand. Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungles is near the village. Dear students, यहाँ पर पोइट एक सजेशन देते हैं कि टाइगर शुड बी सिटिंग एट द जंगल्स एज. टाइगर को तो केज की जगह पर जंगल के एज में रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, फॉरेस्ट में रहना चाहिए, नियर द विलेज. इट मे टेरराइज द पीपल पासिंग दैट वे बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ, वेयरिंग इट्स क्लॉज एंड प्रोड्यूसिंग अ रोअरिंग साउंड ऑफ एंगर. तो यहाँ पर हमारे पोएट लेस्ली नॉरिस, याद रखेंगे Leslie. Once again I am spelling Leslie, Leslie Norris, dear students. Actually Leslie Norris, our poet, is trying to convey that यदि वो टाइगर को छोड़ दिया जाता तो बाहर वो लोगों को टेरराइज करेगा, अपने शार्प टीथ से उसको डराएगा, वेयरिंग इट्स क्लॉज, अपने पंजों से उसे डराएगा, प्रोड्यूसिंग अ रोअरिंग साउंड ऑफ एंगर, गुस्से का वो रोअर साउंड. रोअर मीन्स शेर का दहाड़, एवरीवन नोज. नेक्स्ट, the poet has deep sympathy due to the unpleasant situation of the tiger which is imprisoned in a cell made of concrete. तो यहाँ पर पोइट अपना सिंपैथी शो कर रहा है, सहानुभूति शो कर रहा है. जो अनप्लीजेंट सिचुएशन बना दिया है उस टाइगर के लिए, वो टाइगर के लिए अनप्लीजेंट सिचुएशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि उन्हें केज में रखा जा रहा है, हु इज इम्प्रिजन, उन्हें जेल में रखा जा रहा है, इन अ सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, वो एकदम रिजिड कॉन्क्रीट का बना हुआ वो सेल है, जेल है. टाइगर इज अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वॉल्स फिक्स्ड एट द कॉन्क्रीट सेल. और यहां पर यह भी बताया गया कि टाइगर वो आ नहीं पा रहा है वो बाहर क्योंकि वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर है. सो द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द वर्ड्स. यहां पर टाइगर का जो भी स्ट्रेंथ है वो तो वर्ड्स वो केज के अंदर लॉक्ड किया हुआ है ना. All such circumstances are making tiger having no interest in the visitors. तो यहाँ पर जो भी circumstances बन रही, स्थितियां बन रही है ना, are making tiger having no interest in the visitors. अब देखो जब टाइगर ही एंगर में रहेगा तो how can he take interest in the visitors? visitors में कैसे वो इंटरेस्ट लेगा? उसे तो और गुस्सा आ रहा था visitors को देख करके. And he keeps on stalking in the limited space of the cage. और he could do nothing but wander in that cage. केज के अंदर ही इधर उधर घूमते रहता था. अब देखो एक है ना, एक कोटेशन हिंदी में है, पराधीन सपने हूँ सुखनाई. मतलब इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन यू विल नॉट बी हैप्पी डियर स्टूडेंट्स. यू विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट, the poet is trying to make realize the people about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. इसमें पोइट रियलाइज करवाए हैं लोगों को एक टाइगर के बारे में जिसे केज में रखा गया है और वो अनप्लीजेंट फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, वो बेचैन फील कर रहा है. टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज. देखो उस जू अथॉरिटीज में, जो जू में मतलब चिड़ियाघर में जो अथॉरिटीज था, पुलिस था, इंडिविजुअल्स थे, वो लोग पेट्रोलिंग करने के लिए, वो चेकिंग करने के लिए आते थे. तो इसमें टाइगर अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, उसे और गुस्सा आता था. ही वॉज इन फुल एंगर ऑलवेज. द पोएट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट द
द पोइट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्यूटीफुल आइज। तो यहाँ पर पोइट बताए हैं कि वो एक आम तौर पर ऊपर स्टार्स को ही देखते रहता था विद हिज ब्रिलियंट आइज। एक्चुअली यहाँ पर ना टाइगर को बहुत ही ब्यूटीफुल बताने का काम किया। हु? आवर पोइट लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट, the poet is raising a moral issue here, and he intends to present a strong case against the cruelty of humans for the animals kept in cages. यहाँ पर पोइट यही बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा क्रूएल होते जा रहे हैं एनिमल्स के लिए, खासकर because we are keeping them in cages. Now the conclusion of this poem is what, dear students? What is the conclusion of the poem? In this poem, the poet is conveying an important message that wild animals should be in their natural habitat. यहाँ पर पोएट एक नेचुरल मैसेज दे रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को नेचुरल हैबिटाट में ही रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और बाकी के क्लास के लिए हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। और कोई अगला टॉपिक आज 1:19 तक ही पढ़ा पाए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलो। बोलिए। डॉट नहीं है? पूरा क्लियर हो गया बाबू? चलो थैंक यू। एक दो को तो मैं इन ही नहीं कर पाया था लगता है। इसका मैं लाइन बाय लाइन कल के क्लास में बताऊं तो बोलो। आज इसका समरी मैंने बताया। हम्म, 1 मिनट वेट करो, हम आप लोग से कुछ बात भी करना चाहते हैं। बस 1 मिनट वेट करोगे? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, we will keep uploading the videos of English for all the classes. Thank you everyone. Thank you.